आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भाई अपनी घर की ज़रूरत के लिए एक गाय लेके आता है और वो गाय माशाल्लाह इतनी बरकतों वाली होती है कि वो चंद सालों में ही उनके घर को भर देती हैं, उनमें खुशहाली ला देती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग लाखों रुपए लगा के इम्पोर्टेड गाय लेके आते हैं, लेकिन वो गाय हमेशा उन्हें नुकसान दे रही होती है, उन्हें फ़ायदा नहीं होता। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? सिर्फ एक वजह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भाई अपनी ज़रूरत के लिए गाय लेके आया और कुछ ही सालों में उस गाय की वजह से उनका घर भर गया। वो गाय हर साल उनको बच्चा दे रही है, दूध पूरी कैपेसिटी पे दे रही है और माशाल्लाह वो काम उनको ऐसा रास आया है कि माशाल्लाह वो बढ़ता बढ़ता एक छोटा डेयरी फार्म बन जाता है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सारे लोग लाखों रुपए लगा के बहुत अच्छे जानवर लेके आते हैं, लेकिन वो हमेशा नुकसान पे रहते हैं। एक मिसाल है, अगर वो गाय 30 लीटर दूध दे रही थी जब उन्होंने खरीद करके लेके आई, लेकिन जब वो गाय उनके पास आती है तो वो पूरा दूध ही नहीं देती। तो आखिर क्या वजह है? एक तरफ तो एक जानवर बहुत फायदा दे रहा है अपने मालिक को, दूसरी तरफ लाखों रुपए लगा के खरीदा गया जानवर मालिक को नुकसान दे रहा है। इसकी आखिर क्या वजूहत है? दोस्तों, आज एक ऐसा ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा जो अगर आप समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर आपको कभी नुकसान नहीं देगा। ट्रिक समझने के लिए पहले आप ये छोटी सी वीडियो देखें, फिर आपसे इंशाल्लाह बात करते हैं। कहते ने कि ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੋ ਢੱਗੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਢੱਗੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਤਬੀਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟ ਕੇ ਲੜਾਏ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਫਾਹਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ नहीं हैगी। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੋ ਲਾ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦੇ ਫਾਹਮ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਰਿਆਜ਼ਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਯੂਨੀਕ ਫਾਹਮ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੱਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਓ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ। ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਿਧਰੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਢੱਗੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਏਡੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲਾ ਉੱਥੇ ਢੱਗੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਦੋ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਢੱਗੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਢੱਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਪੱਠੇ। ਉਹ ਗਿਆ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਇਆ ਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪੱਠੇ। ਉਹਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਨਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਜ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਨਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਅਨਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤਨੀ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, वो सारियां चीज़ां तुसीं देखो, तुहानूं हुण ते समझ आ जाएगी कि इमोशन। जी तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी। वीडियो में दोस्तों शायद आपको समझ नहीं आई होगी कि हम डेयरी की बात कर रहे हैं, फीमेल गाय की बात कर रहे हैं, जबकि वीडियो में तो गाय की कोई बात ही नहीं हुई, जबकि वो तो बच्चे की बात है, पुराने जो दांत होते थे उनकी बात है। तो आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होंगे। यहाँ मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखें दोस्तों, बेशक आपके पास जानवर है, लेकिन है तो जानदार, और हर जानदार के कोई ना कोई एहसास व जज्बात होते ही हैं। हमें उन एहसास, उन जज्बात को समझना होगा। जब तक हम उन चीज़ों को नहीं समझेंगे, हम अपने जानवर से भरपूर फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, जानवर से पूरा फ़ायदा लेने के लिए ज़रूरी है कि आप जानवर के साथ अटैच हो जाएं। वो कैसे?
होता यूं है दोस्तों कि वो भाई जो अपने घर की ज़रूरत के लिए एक गाय लेके आया था, उसके पास टाइम होता है, वो अपने जानवर की पूरी तरह देखभाल करता है, वो पूरी तरह अपने जानवर के साथ अटैच हो जाता है, उसको वक्त पे घास, उसका वंडा वगैरह करता है, टाइम पे दूध निकालता है, उसकी हर तरह से केयर करता है, उसको सर्दी से भी बचाता है, गर्मी से भी बचाता है। इसके अलावा उसकी हर तरह की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करता है। बल्कि हमने बाजुका देखा है जिनके पास कम जानवर होते हैं वो अपने जानवरों को साफ़ सुथरा रखते हैं, उनको अपने हाथ से कुछ ना कुछ खिलाते हैं। इस तरह मालिक का और जानवर का आपस में एक रिश्ता कनेक्ट हो जाता है। यहाँ मैं आपको एक मिसाल दूंगा दोस्तों। हम एक डेरे पे गए हुए थे गाय लेने के लिए, तो वहाँ पे एक भैंस बंधी हुई थी। तो वो भैंस अपने पास किसी को आने नहीं दे रही थी। तो हमने उनसे पूछा कि क्या वजह है, तो उन्होंने बताया कि ये कल से हमने 2 बार इसका दूध निकालने की कोशिश की है, लेकिन इसने किसी को करीब ही नहीं आने दिया, किसी को करीब नहीं आने दिया। और अभी तकरीबन दोपहर का टाइम हो गया है, 2-3 बज रहे हैं, तो 3 टाइम का दूध हमने इसका निकालने की कोशिश की है, इसने हमें निकालने नहीं दिया। तो इसकी वजह यह है कि ये भैंस जो इसकी चवाई है वो हमारी वालदा करती हैं, हमारी माजी करती हैं, वो किसी काम की वजह से मुल्तान गई हुई हैं। तो अभी हमने उनको यह सारी सिचुएशन बताई हुई है, तो वो रास्ते में हैं, वो आ रही हैं। तो दोस्तों हम वहीं पे थे, थोड़ी देर में ही उनकी अम्मा जी वापस आ गई। तो उन्होंने खुद आके उस जानवर की चवाई की, पुरसुकून होकर जानवर ने जो है ना दूध निकलवाने दिया। तो आखिर जानवर में कुछ ना कुछ एहसासात जज्बात हैं, तभी तो वो इतना अटैच हो जाता है अपने मालिक के साथ। तो होता यहाँ पे ये है कि जो गरीब इंसान है जिसने एक गाय ली है, वो पूरी तरह केयर करता है अपने जानवर की। इस तरह वो अपने मालिक और उस अपने जानवर का जो है ना आपस में कनेक्शन हो जाता है। जबकि जो लोग लाखों रुपए लगा के जानवर लेके आते हैं, वो मुलाजिम पे उसके तमाम जिम्मेदारियां मुलाजिम पे डाल देते हैं, और मुलाजिम सिर्फ उनको घास का इंतज़ाम करता है, पानी डाल देता है, या जो छोटे मोटे ज़रूरियात होती हैं वो पूरी करता है। वो कभी भी जानवर का ख्याल नहीं करता, कभी उससे प्यार नहीं करता, कभी उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता। तो जब जानवर को उसकी जो एहसासात का जज्बात का रिश्ता है आपसे नहीं जुड़ पाता, तो वो भी आपकी कदर नहीं करता, आपको पूरी कैपेसिटी पे आपको मिल्क नहीं देता, आपको फ़ायदा नहीं देता। तो दोस्तों यहाँ समझने वाली एक और वीडियो आप देखेंगे, छोटा सा क्लिप है, ये आप साथ साथ देखें और मैं आपको बताता हूँ। देखें, अंग्रेज़ों ने ये जो सिस्टम लगाए हुए हैं अपने डेयरी फार्मों में, जिससे जानवर जिस तरह यानी कि उनको खारिश है, या आखिर इतना बड़ा वजूद है, हम छोटे से इंसान हैं, भैंस जानवर जो है ये एक बड़ा जानवर है, उनकी भी जिस्मानी नीड है, किसको खारिश है, किसको प्रॉब्लम है। तो आखिर अंग्रेज़ ने जो इतना खर्चा करके ये सिस्टम लगाए हुए हैं, किसी वजह से ही लगाए होंगे ना। तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो गरीब इंसान है वो इस ज़रूरत को अपने जानवर की पूरी करता है, हाथ वगैरह फेर के उसकी साफ सुथराई करके। जबकि जो बड़े डेयरी फार्म वाले होते हैं उनके पास वो तो खुद हाथ लगा के राज़ी ही नहीं होते काम को, जबकि उनके नौकर के पास और इतने काम होते हैं कि वो ये काम कर नहीं सकता। तो देखें, अगर आपने डेयरी फार्मिंग करनी है तो शौक से करें, अपने शौक से करें, खुद इन्वॉल्व हों फार्म के अंदर काम करने में, जानवरों को प्यार करने में, जानवरों की साफ सुथराई में। बाजुकात हमने देखा है कि सर्दियों में जानवर जब गोबर वगैरह पे बैठता है तो उसके जो खास तौर पे पिछली टांगों पे गोबर लग जाता है, और वो सारी सर्दियां उस गोबर को कोई उतारता नहीं है। जब बाद में उस गोबर को उतारा जाता है या वो उतरता है, तो वो जो उसकी खाल के ऊपर बाल होते हैं उसको उखाड़ के फिर वो उतरता है, नीचे जिस्म खाली हो जाता है। तो क्या इतना गंद सर्दियों में जो जानवर बर्दाश्त कर रहा है, क्या वो इसका आदी हो जाता है? क्या उसे एहसास नहीं होता कि मेरे जिस्म पे गंद है? ये तो हो ही नहीं सकता। आप देखते हैं कि मुर्गी भी मिट्टी में नहा रही होती है, हम तो पानी से नहाते हैं, मुर्गी की आदत है वो मिट्टी में नहाती हैं। और बाज़ जानवरों की आदत है वो अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं। गाय को अगर साफ़ सुथरी जगह मिलेगी, गाय की आप हेल्प करेंगे, तो वो भी अपनी इस आदत को अपनाएगी, खुशहाल रहेगी, तभी वो जाके आपको पूरा फ़ायदा देगी। जब तक आप जानवर का ख्याल नहीं करेंगे, कभी भी वो आपको फ़ायदा नहीं देंगे। आखिर इन लोगों ने, इन यूरोप के जो लोग हैं, वो इतने जो अखराजात करते हैं, ये जो मोटर 12 घंटे या 24 घंटे चलती होगी, आखिर इस पे भी अखराजात आते हैं। जब तक हम लोग इन चीज़ों को, इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझेंगे, हम कभी भी डेयरी फार्मिंग में कामयाब नहीं हो सकते।
बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब